Today we are discussed about two nomenclature of alcohols. First common name and this one IUPAC name. Common name, first alkyl plus alcohol, and IUPAC name alkane. Alkanes E remove, E replace, then add all. Let us example CH3OH. Let us example CH3OH. Common name alkyl group CH3 यानी methyls, and then alcohol methyl alcohol, methyl alcohol, and IUPAC name methane, and E replace, then methane plus all, methanol. Next example CH3 CH2 and CH2 OH, 1 2 3 carbon chain. This carbon chain in straight line, so also called N-propyl, N-propyl alcohols, and IUPAC's name 1 2 3 propane, and first carbon connected by functional group propane all, propane 1 all. Next example, let us next example take CH3 CHOH and CH3. Focus on these compounds. This carbon connected by same alkyls group. These carbon are connected by same alkyl groups. These are called iso. These compounds are iso. 1 2 3 carbon, isopropyl alcohol, and IUPAC name propane 1 2 3, IUPAC name propane 2 all. Let us next example CH3 carbon connected, then another same alkyl group. Focus on this compound. This species, this carbon are connected by same alkyl group. This side on methyl and also this side in methyl, and connected by hydrogen, and this carbon also connected by CH2 or functional group OH. Functional group OH is also called 1 iso. This compound iso 1 2 3 4 carbon, butyl 4 isobutyl alcohol, and IUPAC name 1 2 and this one 3. IUPAC name 2 methyl 1 2 3 propane, and functional group are connected by first carbon propane 1 all. Next example we take next example
CH3, this carbon connected by hydrogen and functional group, and next CH2 and CH3. CH3 connected by this carbon, and this carbon also connected by functional group. A functional group connected by 1 to second number of carbons. Second number of carbon, common name is secondary. 1 2 3 4 secondary butyl, secondary butyl alcohol, and IUPAC name 1 2 3 4 4 means butane to all. Next system, carbinol system. Next nomenclature system, carbinol system. Monohydric alcohol is called carbinol. Monohydric alcohol is known carbinol. Other alcohols are named alkyl derivatives of carbinols. Other related alcohols names derived carbinol. It means जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है उसको हम कार्बिनॉल बोलते हैं, और वही उससे रिलेटेड जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिलेटेड जो अलग बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल सिस्टम अल्कोहल्स. लाइक एग्जाम्पल CH3 CH2OH. Student, we already discussed in previous video classification based on hydroxyl group alcohols, and only one hydroxyl groups are present in carbon compound, that is called monohydric alcohols. It means किसी भी कार्बन जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा उसमें जब तक सिंगल हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. ऐसे ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से बोलेंगे हम लोग कार्बिनोल्स. तो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग इसका, लाइक मिथाइल अल्काइल्स प्लस कार्बिनोल, alkyls plus carbinol. Let us examples, CH3 CH2OH, ethanol, that is name ethyl carbinol, ethyl carbinol, ethyl carbinol. Clear? Next example, let us CH3 CH and connected by hydroxyl group and other CH3. That is IUPAC name, so you know, ethanol, ethane, and one all ethanol. Let us see this example. Focus on this example. Dimethyl carbene. Two methyl group are present in this carbon. So that is dimethyl carbinol. And IUPAC name 1 2 3 2 propane, yeah, propane to all. Clear? Common name. Next example, let us next example C2. Next example
Next example, C2H5 CH connected by other methyl groups, and this one functional group. Common name this compound ethyl methyl carbinol. Ethyl methyl carbinol. And next example, CS3 and CH3OH. Trimethyl 1, 2 and 3. 3 alkyls, 3 methyl group are present in this carbon, connected by this carbon. So these are also trimethyl carbinol. Trimethyl carbinol, and IUPAC name 1, 2, 3. 2 propane, 2 all. The IUPAC name of few. The IUPAC name of few other substituted alcohols. The IUPAC name of few other substituted alcohols: CH3 CH connected by CH3 and CH2 connected by OH. First of all, we calculate numbering. First carbon, second carbon and third carbon. IUPAC name is this compound 2-methyl propane 1, 2, 3 propane 1 all. Next example, CH3 CH2 COH and CH2 CH3 CH2 and CH3. Functional groups are connected this carbon. Functional group connected or this carbon. So determine the numbering of this functional group. Longest carbon chain. हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करना पड़ेगा. तो ऐसी जगह से हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास पड़े. तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट इन दिस साइड 1 कार्बन, सेकंड कार्बन एंड दिस कार्बन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. अगर आप इस कंपाउंड को कार्बन चेन को कनेक्टेड करते हो 1, 2, 3, 4, 5, हमें ये 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही थी. लेकिन जो हमने इसमें कैलकुलेट किया, जो राइट है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा नियर कहाँ से पड़ेगा. तो हमें 1, 2, 3, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देंगे 4, 5, 6, यानी कि जो हमारी कैलकुलेटिंग होगी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की ये रहेगी.
clear? Have name in this compound 3-ethyl hexane 6 carbon chain 3-ol 3-ethyl hexane and 3-ol. Next example. CH3 CH2 CH3 CH and CH double bonded CH2. This carbon connected by functional group. Let us numbering first nearest functional group. 1, 2, 3 और 4. बट ये जो स्पीसीज है हमें इस पर एक नई चीज़ देखने को मिल रही, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है. तो फर्स्ट हमें कितना देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 यानी कि ब्यूट. अब कौन से नंबर पे डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, विच कार्बन कनेक्टेड बाय डबल बॉन्डेड, थर्ड नंबर ऑफ थर्ड कार्बन. तो ब्यूट 3 इन and functional group are connected by those carbon, second carbon ol, bute 2-ol. यानी कि हमारे पास जो स्पीसीज है इस पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. फिर उसके बाद जो डबल बॉन्डेड जुड़ा है हमारे पास कौन सा, थर्ड कार्बन पे, जिसका आईपीक नेम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन चैन ब्यूट. और कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्डेड है, थर्ड कार्बन पे. तो ब्यूट 3 इन और फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे 2-ol. लेट अस नेक्स्ट एग्जांपल. CH ट्रिपल बॉन्डेड CH2OH. इसमें भी हमारे पास फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो 1 2 and 3. इसका नाम हो जाएगा प्रॉप. 1 2 3 कार्बन प्रॉप. अब एल्काइंस है, इस पे क्या है, एल्काइंस ग्रुप लगा हुआ 2 पे, प्रॉप 2 एल्काइंस का एंड फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन, prop 2 1-ol. propyne prop 2 ine and 1-ol, this compound. Let us next example. We take next example like the functional group connected in this carbon, and focus on this corner. This is carbon chain. First of all we take 1 carbon 2 carbon 3 carbon, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड 3 कार्बन. तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड हो रखा है, ठीक है. और यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है या किसके, थर्ड कार्बन से डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है. यानी इसका जो नाम हो जाएगा प्रॉप 1 2 3 कार्बन प्रॉप. सेकंड नंबर पे कौन सा है, इन जुड़ा, प्रॉप 2 इन और फर्स्ट 1-ol. लेटेस्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें. and also connected functional group. Focus on this one carbon, second carbon and third carbon. This compound name 1 2 3. तो इसमें क्या ट्रिपल बॉन्डेड लगा है, यानी कि एल्काइन ग्रुप लगा है. तो प्रोप
2 दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, प्रोपाइन 2 प्रोपाइन एंड 1 ऑल। नेक्स्ट स्टडी ऑफ IUPAC नेम साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड फर्स्ट कार्बन। मतलब साइक्लिक अल्कोहल में जो होगा कि OH ग्रुप जो होगा वो फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। लेटेस्ट एग्जांपल, फोकस ऑन दिस। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमें साइक्लो लगाना पड़ेगा इसमें, साइक्लो। तो लाइक साइक्लो, पहले साइक्लो, अब साइक्लो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन, साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, साइक्लो ब्यूटेनॉल। एंड अनदर एग्जांपल टू टेक, स्टूडेंट फोकस ऑन दिस। काफ़ी टाइम क्या करते हैं कि बच्चे इसको मिस्टेक करके सीधा फिनॉल लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या है, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है। उसकी टेंडेंसी क्या है, एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेटेड डबल बॉन्डेड नहीं है, तो ये फिनॉल नहीं है। इसको हम बोलेंगे साइक्लो। साइक्लो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन नहीं होगा, हेक्सेन होगा, एल्केन क्योंकि डबल बॉन्डेड नहीं है उसमें, साइक्लोहेक्सेनॉल। अनदर एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप एंड आल्सो कनेक्टेड मिथाइल। तो फर्स्ट कार्बन 1 2, तो 2 मिथाइल साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो, कितने कॉर्नर है इसमें, कितने कार्बन हो रहे, 1 2 3 4 5, साइक्लो पेंटेन, पेंटेनॉल। नेक्स्ट IP नोमेनक्लेचर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। OH group contain 2 or more, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सिल है होता है कि उसमें जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 2 या 3 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, मतलब मोर देन 2 कार्बन तक तो कनेक्टेड होते हैं। क्लियर। इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं कई बार, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बीटा गामा एंड ओमेगा एक्सेट्रा। इसका रूल ये है, फर्स्ट अल्फा ग्लाइकोल प्लस नेम ऑफ एल्केन, अब इस पे एल्केन नहीं एल्कीन, दे ऑब्टेन डायरेक्ट OH। हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि जो OH ग्रुप कंटेन और 2 और मोर होगा इसमें रिप्रेजेंट, जो हमारे पास इस पॉलीहाइड्रोक्सिल होगा तो उसमें अलग अलग कार्बन कंपाउंड पे एडजेसेंट अलग अलग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, उसको हम अल्फा बीटा गामा और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने उसके लिए एक रूल बनाया है ये है हमारे पास, अल्फा ग्लाइकोल के साथ हम क्या करेंगे, एल्केन जिसको हम ले रहे हैं उसमें एल्कीन लिखना पड़ेगा, एल्कीन, और एल्कीन के साथ जिस समय किसमें डायरेक्ट जो है OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लाइक एग्जांपल CH2 एंड CH2
connected by OH group, that is named ethylene. Two carbons compound, two carbons, ethylene glycol. And other example, IUPAC name 1,2-diol, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे दोनों पे ही क्या कनेक्ट हो रखा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 1,2-डायोल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लोग CH3 CH एंड CH2 कनेक्टेड, इसमें डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप OH। तो हमारे पास इसका क्या होगा, 1 2 3 कार्बन का प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, एंड IUPAC नेम 1 2 3 1 2 प्रोपेन 1,2-diol। Other example, we take CH2 CH and CH2 connected by separate functional group OH, each carbon connected by separate functional group, also called glycol, glycerol, it is called, common name जो इसका है, इसका common name हो गया हमारे पास, it is not common name glycerol, and IUPAC name 1 2 3 propane 1 2 3 triol